গ্রন্থগুলো পড়েছেন, কোরআন ও হাদিস পড়েছেন। যেমন তিনি হিন্দুদেরকে বোঝাতে পারেন, তেমনি তিনি মুসলিমদেরও বোঝাতে পারেন। আমার হিন্দু ভাই যদি কেউ থাকে তারাও তার বক্তব্য শুনতে পারেন। আমার কোনো মুসলিম ভাই পার্শ্ববর্তী বাঙালপাড়া থেকে, বাস্তবপুর থেকে, কবরগাড়ি থেকে, বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত যারা এসেছেন শোনার জন্য, আপনারা অনুগ্রহপূর্বক প্যান্ডেলের ভিতরে চলে আসুন। আমার এই ভাই 1 ঘন্টা সময় ধরে বক্তব্য দেবেন। আশা করি আপনাদের মন মগজকে ধুলাই করে দেবে, মন মগজের পরিবর্তন করবে ইনশাআল্লাহ। আমরা এটাই আশা করছি। এখন আমরা দিয়ে দেব আমার ভাই সাদ্দাম হোসেনকে, জেনারেল শিক্ষিত একজন ভাই, যেই ভাইদের সম্পর্কে একসময় বলা হচ্ছিল যে জেনারেল শিক্ষিতরা আর কি জানে, এরা তো মূর্খ গড্ড, এরা আবার কি জানে। কিন্তু এরাই এমন এখন তোলপাড় দিয়ে উঠেছে দুনিয়ার বুকে, পৃথিবীর বুকে, ভারতবর্ষের বুকে, পশ্চিমবঙ্গে, উত্তর দিনাজপুরে এই জেনারেল শিক্ষিত ছেলেরাই বিনা পয়সায়, বিনা টাকায় মানুষকে দাওয়াত দিয়ে বেড়ায়, মানুষকে হেদায়েতের পথে ডাকে, মানুষকে ভুল ভ্রান্তিগুলো সংশোধন করে দিতে বলে। সুতরাং আমার সেই ভাইকে আমি এখনই দিয়ে দিচ্ছি। আসুন সাদ্দাম হোসেন ভাই সাহেব, তিনি উর্দুতে বক্তব্য পেশ করবেন। বাংলা তো করতে পারে, তাহলে উর্দুতেই বেশি ভালো পারেন। সুতরাং তিনার এখন ইচ্ছা যে ভাষাতেই তিনি বক্তব্য দান করেন। আসুন সাদ্দাম হোসেন সাহেব। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے اسلام اور جدید سائنس، اسلام اور آدھونک سائنس. میں یہ ٹاپک اردو میں اس لیے بولنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ انگلش ورڈز ہے، کچھ انگلش لفظ ہے، کچھ انگلش شبد ہے جس کو میرے لیے بانگلہ میں ٹرانسلیٹ کرنا مشکل ہوگا، اور کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ بات کے دوران اگر کہیں ایسے لفظ یا ایسے الفاظ آئے جس کو آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے بانگلہ بولنے کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ بولوں گا. لیکن کیونکہ میں بانگلہ ہمیشہ نہیں بولتا ہوں، اس وجہ سے بانگلہ میں تقریر کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں اردو میں بولنے کا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بیچ جہاں مجھے لگے کہ یہاں بانگلہ بولنا بیٹر رہے گا میں کوشش کروں گا بانگلہ میں سمجھانے کے لیے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے میری اس تقریر کا موضوع ہے اسلام اور جدید سائنس. جدید مطلب نیا، آدھونک، ماڈرن. کسی بھی چیز کو سمجھنے سے پہلے اس چیز کے بارے میں، اس ٹاپک کے بارے میں، اس لفظ کو جاننا سب سے پہلے ضروری ہے. مثال کے طور پہ آج کے میری اس تقریر کا موضوع ہے اسلام اور جدید سائنس. تو پہلے آپ کو اسلام اور جدید سائنس یہ دو الفاظ، ان دونوں لفظوں کے معنی کو جاننا ضروری ہے. اگر آپ یہ دونوں لفظ کو نہیں جانیں گے، ان دونوں الفاظ کو نہیں جانیں گے تو پھر اس ٹاپک کو نہیں سمجھ پائیں گے. تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اسلام کیا ہے. اسلام آتا ہے عربک لفظ سلم سے، جس کے معنی ہے شانتی، جس کے معنی امن، پیس. اور یہ آتا ہے عربک لفظ سلم سے بھی، جس کا مطلب ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو آلمائٹی گاڈ. آپ کے مرضی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر چھوڑنا، اس کو کہا جاتا ہے اسلام. تو اسلام کا مکمل معنی ہوا کہ اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر چھوڑنے کے بعد امن قائم کرنا، اس کو کہا جاتا ہے اسلام. اور یہ لفظ اسلام قرآن مجید میں کئی جگہ پر موجود ہے. مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں
سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں. اور دوسرا پہلو ہے اس کا جدید سائنس. سائنس کو آکسفورڈ ڈکشنری نے جو معنی بتایا ہے وہ ہے the knowledge or study observed by the experiment or the materialistic system or a fact. سائنس کا مطلب ہوتا ہے ایسی نالج، ایسا تعلیم، ایسی شکشا جس کو آپ لیتے ہیں کسی ایکسپیریمنٹ کے بعد، مطلب کسی چیز کو ثابت کرنے کے بعد جو نالج آپ حاصل کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سائنس. مطلب نئی کوئی کھوج جس کو ایکسپیریمنٹلی، صرف یوں ہی نہیں کہ یہ میں جانتا ہوں اور کرتا ہوں، اس کو ثابت کر کے سمجھنا، اس کو کہا جاتا ہے سائنس اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ ڈکشنری. اور اسلام کیا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں اسلام کیا ہے؟ بولیے اسلام کیا ہے؟ نہیں جانتے کوئی؟ اسلام کیا ہے اس کا جواب اللہ خود قرآن میں دیا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں. ان الدین عند اللہ الاسلام, the only religion acceptable in the sight of Allah, that is Islam. اسلام کو اللہ نے کہا کہ ایک ایسا دین جو اللہ کے نزدیک ایکسپٹیبل ہے, مطلب جو اللہ کے نزدیک قبول ہونے والی دین ہے وہ اسلام. تو اسلام کیا ہے؟ ان الدین, دین ہے اسلام. تو اسلام ایک دھرم ہے, ایک ریلیجن ہے, ایک دین ہے. اور سائنس ایک الگ چیز ہے. تو اسلام کے ساتھ سائنس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اسلام کے ساتھ سائنس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں اس کا جواب میں دوں گا. ایک پروفیسر جن کا نام تھا البرٹ آئنسٹائن, انہوں نے بتایا کہ ریلیجن وداؤٹ سائنس از لیم اینڈ سائنس وداؤٹ ریلیجن از بلائنڈ. یہ پروفیسر البرٹ آئنسٹائن who was a Nobel Prize winner, جن کو نوبل پرائز ملا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ریلیجن وداؤٹ سائنس از لیم. ریلیجن دھرم جو ہے سائنس کے علاوہ لنگڑی ہے, اور سائنس وداؤٹ ریلیجن از بلائنڈ, سائنس دھرم کے علاوہ اندھی ہے. تو پروفیسر البرٹ آئنسٹائن کے مطابق ایک سائنس, کوئی بھی کام جو سائنس کھوجتی ہے اس کو ضروری ہوتا ہے کہ ریلیجن پہ بیس ہو, مطلب دھرم کے اوپر اس چیز کو آدھارت کر کے وہ کھوجتا ہے. اور کوئی دھرم صحیح دھرم نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ان کے اندر سائنس موجود نہیں ہے. کن کے مطابق؟ اکارڈنگ ٹو البرٹ آئنسٹائن, البرٹ آئنسٹائن کے مطابق. اور کیونکہ یہ اسلام اور قرآن مجید اور سائنس کے متعلق جو بات ہے, یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے میں کوشش کروں گا ایسٹرونومی کے بارے میں بتانے کے لیے, مطلب فلکیات. یہ دنیا کیسے وجود میں آیا, ہاؤ ڈڈ آور یونیورس کم انٹو ایگزسٹنس, یہ دنیا وجود میں کیسے آتا ہے. اس طریقے سے ایک مکمل سائنس نے سرچ کیا, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو بات آج سائنس ثابت کرتی ہے, قرآن مجید نے اس بات کو 1400 سال پہلے ثابت کر چکا. تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا وجود میں کیسے آیا, اس دنیا کے وجود کیسے, اس دنیا کی تخلیق کیسے ہو. تو اس کے بارے میں سائنس نے بتایا کہ یہ آسمان اور زمین پہلے ایک پرائمری نیبولا, مطلب پراتھمک راسائن جس کو ہندی میں کہتے ہیں, سب سے پہلا اسٹیج میں تھا پرائمری نیبولا کے شکل میں. اس کے بعد ایک سیکنڈری سیپریشن ہوتا ہے, مطلب ان دونوں کو الگ الگ کیا جاتا ہے. کس کے ذریعے؟ ایک دھماکہ کے ذریعے. مطلب آسمان زمین ایک تھا, پھر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور آسمان اور زمین الگ الگ ہو جاتا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ سائنس. اس تھیوری کو انگلش میں کہا جاتا ہے بگ بینگ. مطلب بگ مطلب بڑا, بینگ مطلب دھماکہ. تو بگ بینگ مطلب بڑا دھماکہ. تو جب بڑا دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ آسمان اور زمین الگ الگ ہو جاتے ہیں. پھر آسمان اور زمین الگ ہوتے وقت یہاں دھواں رہتا ہے, اور یہ ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی دھماکہ ہوگا تو دھواں تو ہوگا ہی. تو اس وقت دھواں ہوتا ہے, پھر یہ دھواں گیلیکسیز, سورج, چاند, یہ سب بن جاتا ہے. یہ شارٹ میں سائنس نے بتایا دنیا کے وجود کے بارے میں. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں, جس آیت کی تلاوت میں نے اپنے تقریر کے شروعات میں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں, اولم یر الذین کفروا,
أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون اولم ير الذين كفروا کیا وہ کافر لوگ نہیں دیکھتے ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما کہ آسمان اور زمین ایک تھا پھر ہم نے اس کو الگ الگ کیا جدا جدا کیا. یہ آیت ان نٹشل چند لفظوں میں چند شبد میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بگ بینگ کے اوپر بات کر رہی ہے. تو جس طریقے سے سائنس نے یہ تقریباً 50 سال 60 سال پہلے سائنس نے اس کا کھوج کیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے. تو جو سائنس بتاتے ہیں ہم اس کے بارے میں اس کے بعد دھواں تھا. یہ دھواں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں لکھا ہے. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ دخان. دخان ایک عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دھواں. دخان ایک عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دھواں. اور اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کے طرف رجوع ہوا, آسمان کے طرف دیکھے, آسمان کے طرف دھیان دیے تو اس وقت یہ دھواں تھا. تو اس آیت سے اور قرآن مجید کے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 یہ دو آیت کو ملا کے یہ بات ثابت ہو چکا کہ چند سبجوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا کی وجود کیسے ہوا. سائنس نے جو بات تقریباً 50 سے 60 سال پہلے پتا کیا, الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید میں یہ 1400 سال پہلے ذکر کیا ہوا ہے. دوسری بات, یہ زمین جہاں ہم رہتے ہیں اس دھرتی میں یہ کیسا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اسکول میں اور بہت دن سے یہ لوگ جانتے تھے. پہلے کے لوگ ٹالمی کے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ زمین جو ہے چپٹی ہے, سپاٹ, اور اس میں کوئی اور حرکت نہیں ہوتا, بالکل سپاٹ ہے, چپٹی زمین ہے. اس کے بعد کے لوگ آئے, کسی نے کہا یہ چپٹی نہیں ہے, سپاٹ نہیں ہے, سکے جیسی ہے. سکہ پیسہ ہے نا, 1 روپے کا سکہ دیکھتے, سکہ بھی گول ہے لیکن دو طرف سے سپاٹ ہے, چپٹا. تو یہ بھی لوگوں نے کہا. پھر بعد میں سن 1597 عیسوی میں سن 1597 عیسوی میں ایک شخص جن کا نام تھا سر فرانسس ڈریک, ایک سائنٹسٹ تھا, ایک ویگیانک تھا, انہوں نے کہا he sailed around the earth and proved that the earth is round like a ball. یہ انہوں نے سر فرانسس ڈریک نے اس پرتھوی کے چاروں اور ارد گرد گھومے سمندر کے راستے سے. اس کے بعد انہوں نے ثابت کیا کہ یہ دنیا جو ہے گول ہے, یہ دنیا گول ہے, سپاٹ نہیں ہے, گول. اور انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے, مطلب تقریباً سنترا جیسا. It is bugging from the center and flattened from the pole. اوپر اور نیچے سے تھوڑی سی چپٹی ہے. یہ بات سر فرانسس ڈریک ثابت کرتے ہیں سن 1597 عیسوی میں. مطلب دنیا گول ہے سائنس کے مطابق. ابھی ہم قرآن مجید سے کوشش کریں گے جاننے کی کہ واقعی قرآن نے کیا کہا اس کے بارے میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کئی بے شمار آیت ہے قرآن میں جس سے ثابت کیا جا سکتا ہے دنیا کے شکل کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے شکل کے بارے میں جو ثابت کرنا تھا تو اللہ نے دن اور رات کو یوز کیا, دن کو اور رات کو استعمال کیا, اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس رات, یہ رات دن میں ہولے ہولے گریجویلی اینڈ سلولی آہستہ آہستہ دن میں بدلتے ہیں, اور یہ دن ہولے ہولے سلو آہستہ آہستہ رات میں بدلتے ہیں. اگر یہ دنیا چپٹی یا سپاٹ یا چارکون ہوتا تو آہستہ آہستہ دن رات میں اور رات دن میں نہیں بدلتا. مثال کے طور پہ اگر چارکون اگر ہوتا یہ دنیا تو اس طریقے سے جاتے جاتے دن جہاں کونا چینج ہوتا ہے وہاں اچانک رات ہو جاتی ہے, اور پھر آگے جاتے جاتے جہاں پھر کونا چینج ہو رہا ہے وہاں پھر اچانک دن ہو جائے. تو الٹا پلٹی ہوتا, اچانک ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہے. تو قرآن میں یہ آیت ہم کو ثابت کرتی ہے کہ یہ بالکل گول ہے تاکہ یہ اوورلیپ ہو رہا ہے. مطلب ایک فیتا, ایک فٹ بال لیجیے آپ یا کوئی گول چیز لیجیے, اس فیتے کو جس طریقے سے آپ لگاتے ہیں اسی طریقے سے دن رات میں اور رات دن میں تبدیل ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے جس سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ دنیا گول ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ نے کیا آیت اور فرمایا جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل. یہاں اللہ نے
यूज किया युकव्विरुल लैल, यहाँ ये वर्ड आता है कव्वारा से, जिसका मतलब होता है ओवरलैप, मतलब ढांपना। तो एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ता है। इस आयत से भी साबित होता है दुनिया गोल है। इस वजह से रात दिन में और दिन रात में होले होले, स्लोली, ग्रेजुअली, आहिस्ते से तब्दील होते हैं। और सबसे बेस्ट आयत जो दुनिया के गोल होने के ऊपर दलालत कर दिया कुरान मजीद में, वो है सूरह नाजियात में सूरा नंबर 79 आयत नंबर 30। वो अल्लाह ताला फरमाते हैं वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, फिर इस दुनिया को हमने दहाहा की शक्ल में बनाया। दहाहा एक अरबिक वर्ड है जो आता है अरबिक वर्ड दुहिया से, जिसका मतलब होता है अंडा। और ये वर्ड दुहिया नॉर्मल अंडे को रेफर नहीं करती है, नॉर्मल अंडा का मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, मतलब शुतुरमुर्ग के अंडा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा अगर आप देखेंगे, अगर शुतुरमुर्ग के अंडा को यहाँ रखेंगे तो लुढ़केगा नहीं। जैसे मुर्गे वगैरह का अंडा को रखेंगे तो लुढ़क जाता है ना, उसको रखेंगे वो लुढ़केगा, लेकिन शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं लुढ़कता। क्यों? क्योंकि ये भी ऊपर और नीचे से थोड़ी सी चपटी होती है। तो इस आयत से साबित किया जा सकता है कि दुनिया गोल है। और जो साइंस ने 1597 तकरीबन 400 साल पहले साबित किया, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में 1400 साल पहले साबित किया जा चुका है कि दुनिया गोल है। अब दूसरी बात कि हम लोग स्कूल में पढ़े सर कि जमीन जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमता है ना, ये सूरज जमीन के इर्द गिर्द घूमता है। सूरज को स्टेशनरी कहा गया और जमीन को ये घूमने की बात कहा गया, लेकिन हकीकत क्या है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। साइंस ने इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे। कोपर्निकस ने आया, उन्होंने रिसर्च किया, गैलीली ने रिसर्च किया। अक्सर लोगों ने साबित किया कि सन स्टेशनरी है, मतलब सूरज स्थिर है और ये जमीन उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। सूरज स्थिर है और ये जमीन सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। ये बहुत सारे लोगों ने साबित किया। लेकिन साइंस के दो भाग होते हैं, साइंस में दो भाग होते हैं, एक को कहा जाता है थियरी और दूसरे को फैक्ट। थियरी का मतलब होता है वो चीज जिसको साबित नहीं किया गया हो, खाली बोला गया हो। और फैक्ट का मतलब वो चीज जो साबित किया गया हो, मतलब रियलिटी, सच बात, उसको कहते हैं फैक्ट। तो ये बात उस वक्त तक के साबित नहीं किया गया था, सिर्फ थियरी था। मिसाल के तौर पे डार्विन थियरी, चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने कहा कि इंसान बंदर से आया है। क्या आप लोग मानते हैं कि इंसान बंदर से आया है? मानते हैं? नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इंसान बंदर से नहीं आया है। पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे, तो हम तो जानते हैं, तो हमारा अकीदा भी है इस चीज पे। हम नहीं मानते कि इंसान बंदर से आया, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने ये बात साबित करने के लिए एम्ब्रियोलॉजी, मतलब बच्चा पैदा होने के तरीके, उसको साबित करने गए और उन्होंने बताया कि ये जो इंसान है बंदर से आया हुआ है। चार्ल्स डार्विन, उसके थियरी को कहा जाता है द थियरी ऑफ एवोल्यूशन, मतलब एवोल्यूशन की थियरी। वो थियरी थी, फैक्ट नहीं, हकीकत नहीं, एक थियरी। और उन्होंने एक लेटर भी लिखा था चार्ल्स डार्विन ने, किनको? अपने दोस्त को। और उस लेटर में वो लिखते हैं कि क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी को साबित करने में मुझे मदद मिलती है, आसानी होती है, इस वजह से मैंने कहा कि इंसान बंदर से आए हैं, लेकिन मेरे पास भी इसका कोई सबूत नहीं है, उन्होंने कहा था। तो ये थियरी है, फैक्ट नहीं। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था थियरी और फैक्ट के बारे में कि आसमान, सूरज घूमता है कि नहीं। अभी साइंस ने बहुत तरक्की करने के बाद एक साइंटिस्ट जिनका नाम था योहान्नेस केपलर ने सन 1609 ईस्वी में एक किताब लिखे। उस किताब में वो लिखते हैं कि द सन, सूरज के बारे में कहते हैं, द अर्थ इज नॉट ओनली रोटेटिंग अराउंड देयर ओन एक्सिस, इवन द सन इज रोटेटिंग अराउंड देयर ओन एक्सिस। सिर्फ जमीन जो है अपने महवर के इर्द गिर्द नहीं घूमते, सिर्फ जमीन जो है अपने एक्सिस, धुरी के चारों तरफ नहीं घूमते, इवन सूरज भी घूमता है। तो उन्होंने, सर योहान्नेस केपलर ने एक किताब लिखा, किताब का नाम था एस्ट्रोनोमिया नोवा। उस किताब के अंदर वो लिखते हैं कि सूरज घूमता है और जमीन अपने एक्सिस पर है, सूरज घूमता है। तो कुरान मजीद में इसके बारे में क्या लिखा आप चेक कीजिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाया है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33, आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वही वो अल्लाह है जिसने रात और दिन बनाए, वश्शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, उसमें से हर एक
तैरता है एक दूसरे पे। यस्बहुन वर्ड यूज किया, यस्बहुन लफ्ज यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया। यस्बहुन आता है अरबिक वर्ड सबहा से, और अगर ये वर्ड सबहा अगर आप इस्तेमाल करते हैं किसी इंसान के लिए जो जमीन पे है, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो इंसान जमीन पे ऐसे ही चल रहा है, इसका मतलब होगा वो इंसान जमीन में दौड़ रहा है। और अगर यही वर्ड सबहा किसी इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पानी पे है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो इंसान पानी में फ्लोट कर रहा है, मतलब भस रहा है, इसका मतलब होगा वो इंसान पानी में तैर रहा है। तो जब यही वर्ड सबहा को कुरान में अल्लाह ने इस्तेमाल किया सूरज और चांद के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज और चांद आसमान में लटक रहे हैं, बल्कि वो अपने महवर के चारों ओर गर्दिश कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो कुरान मजीद में सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 के मुताबिक ये बात साबित हो जाती है कि अल्लाह ताला ने कहा कुरान मजीद में कि वशम्स वल कमर कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, उनमें से हर एक तैरते हैं, चक्कर लगाते हैं अपने महवर की, अपने धुरी के चारों ओर घूमते हैं। तो जो बात साइंस ने तकरीबन 400 साल पहले साबित किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बात कुरान में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो कौन ये कुरान में लिख सकता है? बोलिए कौन लिखा है कुरान में? कौन? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में लिखा। कोई इंसान, साइंटिस्ट को उतना पता ही नहीं था 400 साल पहले, 400 साल पहले उन्होंने सर्च किया, लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले इस चीज को बता दिए। तो ये अल्लाह ताला है जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि हमारे जो मुसलमान है वो नॉलेजेबल हो। इसीलिए कुरान की पहली आयत जो नाजिल होती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो सूरह अलक में से सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1 में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने आपको बनाया। तो इक़रा लफ्ज यूज किया जाता है, और कुरान मजीद भी आता है लफ्ज तरा या इक़रा से, जिसका मतलब पढ़। तो हमें कहा गया है पढ़ो, और अफसोस की बात है कि अक्सर मुसलमान साइंस से दूर भागते, साइंस को नहीं पढ़ते, और चाहते नहीं कि हम साइंस पढ़ो, नहीं ये जरूरी नहीं है मेरे लिए, साइंस पढ़ के क्या करेंगे। तो क्योंकि सबसे बड़ा साइंटिस्ट अगर कोई होगा तो मुसलमान होगा, क्योंकि सब कुछ जो अल्लाह ने बताया वो पहले हमको बता चुके अल्लाह ताला। तो कुरान मजीद से ये बात साबित हो जाती है कि सूरज घूमता है, स्थिर नहीं है। दूसरी और उसके बाद देखिए साइंस ने एक तरफा जितनी भी बातें की, तकरीबन कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं। कुछ लोग कहते हैं 6666, ये गलत है। कुरान में 6666 आयत है ही नहीं, आप गिन के चेक कीजिए। बहुत लोग अक्सर तकरीर में भी कह देते हैं कि कुरान में 6666 आयत है, हालांकि है नहीं, ठीक है। क्योंकि ये एक, कितने लोग इंटरनेट चलाते हैं ना, इंटरनेट में गए लिखे कुरान में कितने आए थे, हाँ, और वो इंटरनेट में लिखा आता है 6666, वो पढ़ लिए चेक किए ही नहीं, वो दुनिया को सुनाते। तो ये गलत है। कुरान में 6666 नहीं 6346 आयतें हैं, तकरीबन 6000 से ज्यादा आयतें हैं। 6666 जो लोग मानते हो गलत है। और इसमें से 1000 से ज्यादा आयतें हैं जो सिर्फ साइंस के ऊपर बात करती है, साइंस के ऊपर दलालत करती है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताना चाहता हूं सूरज चांद के बारे में। हमारे लोग, पहले लोग ये मानते थे कि चांद की अपनी रोशनी है, चांद के पास उनकी अपनी रोशनी है, और फिर लोगों ने कहा नहीं चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है, ये ली हुई रोशनी है, बोरोड लाइट है। साइंस ने इसके ऊपर क्या बात किया? साइंस ने बताया हमें कि सूरज के पास उनकी अपनी रोशनी है और चांद के पास ली हुई रोशनी है, मतलब बोरोड लाइट, उधार किया हुआ रोशनी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ द सन, सूरज का लिया हुआ रोशनी चांद के पास है। ये साबित किया साइंस ने। और अगर हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला आसमान में 2 बुर्ज रखे, अल्लाह ताला आसमान में बुर्ज रखे, उनमें से एक को कहा उन्होंने, कुरान में अरबिक में सूरज को कहा जाता है शम्स, और चांद को कमर, चांद का और एक नाम है हिलाल। तो हिलाल सिर्फ नया चांद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुरान में 3 नाम है चांद के लिए, तो पहला है शम्स, सॉरी कमर। तो कुरान में अल्लाह ने कहा वो कमर मुनीरा, कमर जिसको कहा जाता है चांद, चांद की रोशनी को अल्लाह ने पूरे कुरान मजीद में, पूरे कुरान मजीद को पढ़िया, हर जगह चांद की रोशनी को अल्लाह ने इस्तेमाल किया नूर या मुनीर कह के, लेकिन सूरज की रोशनी को अल्लाह ने इस्तेमाल किया सिराज, वहाज और दिया। ये 3 अल्फाज इस्तेमाल किया अल्लाह ने सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करने के लिए कुरान मजीद में। लेकिन कहीं भी कुरान मजीद में सूरज की रोशनी को नूर या मुनीर नहीं कहा गया, और चांद की रोशनी को सिराज, वहाज या दिया नहीं कहा गया। तो इससे ये साबित हो जाती है कि दोनों अलग अलग चीज है। और इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि हमने बुर्ज रखे जिनमें एक को नूर दिया और एक को सिराज,
वह कमर मुनीरा। तो मुनीर आता है अरबिक वर्ड नूर से, जिसका मतलब होता है रोशनी, और नूर का एक और माना होता है मुनीर का द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ली हुई रोशनी। तो चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है, ली हुई रोशनी है सूरज से। और मिसाल के तौर पे इसको आप चेक कर सकते हैं, अभी आप चेक कर सकते हैं, अपने मोबाइल से टॉर्च ऑन कीजिए और टॉर्च ऑन करने के बाद आगे की तरफ दिखाइए जहाँ अंधेरा है, और जो अंधेरा है वो जगह आपको दिखने लगती है रोशनी। तो वो लाइट, क्या लाइट वहाँ दिखती है और जगह दिखता है, ये बताइए। जब आप टॉर्च ऑन करते हैं तो जगह दिखता है या रोशनी? जगह दिखता है, रोशनी नहीं। और जिन लोगों का ये अकीदा है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे, अगर वो इस हिसाब से मानते हैं तो अल्लाह के रसूल भी दिखना नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल दिखे, इसका मतलब अल्लाह के रसूल नूर नहीं थे। और अगर उनका ये अकीदा है कि अल्लाह के रसूल नूर थे, नूर कुरान मजीद को भी कहा गया, अगर अल्लाह के रसूल नूर थे, अगर वो ये मानते हैं नूर मतलब अंधेरे को दूर करने वाली चीज, अंधेरे को दूर करने वाली, तो मेरा भी अकीदा है कि अल्लाह के रसूल आए थे इस गुमराहियों को दूर करने के लिए। तो इस बिना पर लफ्जी एतबार में उनको नूर कहना सही है, लेकिन फिजिकली कि अल्लाह के रसूल जाती तौर पे नूर थे, ये गलत है। इसके ऊपर मैं 1 घंटे की तकरीर कर सकता हूँ, सिर्फ 2 अल्फाज। क्यों? क्योंकि लोग साइंटिफिक जब समझेंगे तो समझ में आएंगे। नूर देखने में मदद करती है, दिखता नहीं। कोई अगर बोले तो उसे पूछ लीजिए कि सूरज के रोशनी का कलर बताइए, सूरज की रोशनी का कलर बताइए, कौन से रंग का है सूरज की रोशनी, उन्हें बता सकता। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी आपको देखने में मदद करती है, वो नहीं दिखता। सूरज की रोशनी नहीं दिखता, वो देखने में मदद करती। तो अल्लाह के रसूल दिखते भी थे और हमको देखने में मदद भी किए, मतलब हम गुमराह लोगों को अल्लाह के रसूल सही चीज की तरफ बुलाए भी और मदद भी किए। तो अल्लाह के रसूल नहीं थे, जिनका ये अकीदा है वो समझ जाए। तो कुरान मजीद ने 2 अल्फाज से साबित किया कि सूरज की अपनी रोशनी है और चांद की अपनी रोशनी नहीं है। तो ये सब बातें जो साइंस ने साबित की, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में ये बातें तकरीबन 1400-1450 साल पहले अल्लाह फरमा चुके हैं। फिर भी अब तक अक्सर स्कूल में इस बात को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। अभी भी बहुत सारे स्कूल में पढ़ाया जाता है कि सूरज स्थिर है, सूरज स्थिर है और ये जमीन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। हालांकि ये बात साबित हो चुकी है ऑलरेडी कि एस्ट्रोनॉमी या नोवा किताब के मुताबिक सूरज घूमता है और ये जमीन के बारे में वो साइलेंट है, जमीन के बारे में कुछ नहीं कहा। एक मिसाल मैं आपको पेश करता हूँ और ये प्रैक्टिकल आप अगर दिमाग लगाएंगे तो साबित हो जाएगा कि जमीन घूमता है या नहीं। जमीन के बारे में एक मिसाल देता हूं। ये 2 चीज है, ये कुरान मजीद है, ये मोबाइल है। मानिए ये कुरान मजीद जो मेरे हाथ में अभी, इसको आप समझिए जमीन है, ठीक है, इसको समझिए जमीन है और इसके ऊपर ये जो है, ठीक है, इसको आप समझिए कि ये कोई चीज है, जमीन के ऊपर कोई चीज है। तो इसको आप क्या समझिए? हवाई जहाज। इसको आप समझिए हवाई जहाज, एरोप्लेन, और ये जमीन है। मिसाल के तौर पे अगर ये जमीन जो है हम देखते हैं, अगर ये जमीन ऑलरेडी घूमती है, अगर जमीन घूमती है तो किस हिसाब से घूमती है? इस हिसाब से या इस हिसाब से या इस हिसाब से? अगर इस हिसाब से घूमे तो हम लोग तो गिर जाएंगे, गिरेंगे कि नहीं? अगर जमीन इस हिसाब से घूमती है तो हम गिरेंगे कि नहीं? हम लेकिन गिरते नहीं है। और अगर इस हिसाब से घूमे, इस हिसाब से, मतलब ये जमीन है इस हिसाब से घूम रही है, इस हिसाब से, जैसे फैन घूमता है ना, फैन अगर इस हिसाब से घूमे तो एक प्रैक्टिकल आपको मैं दिखाता हूँ। मान जाइए ये जमीन है, मान जाइए ये जमीन है और ये एरोप्लेन है। ये एरोप्लेन हम यहाँ रखें और हमको जो है निकलना है अमेरिका, मुझे अमेरिका निकलना है। और आप क्या करते हैं कि जब अमेरिका निकलना है आपको, तो अमेरिका जो है मेरा इधर है, इस तरफ अमेरिका है, और ये एरोप्लेन जब भी टेक ऑफ करती है, जब भी ये एरोप्लेन इस जमीन को छोड़ देती है इस तरीके से, तो जमीन से इनका कनेक्शन कट गया, कटा कि नहीं? अब जमीन अलग चीज होगी, अलग चीज है। अब अगर ये जमीन घूमे तो मानिए एरोप्लेन ऐसे खड़ा ऊपर उड़ने लगी और ये अपने नक्शे के हिसाब से चलने लगी, इनको जाना था इस तरफ, तो उड़ने के बाद इस तरफ जाने लगी। अगर ये जमीन घूमे तो ये अमेरिका जो यहाँ पर है ये इधर आ जाना चाहिए। तो हम अमेरिका निकले थे, हमको पहुंच जाना सऊदी अरब चाहिए। ऐसा होता है क्या? जो आदमी अमेरिका के निकलता है वो अमेरिका पहुंचता है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर जमीन घूमे तो दिशा अनबैलेंस हो जाएगा। ये आदमी जो अमेरिका के लिए रवाना होगा, अपने एरोप्लेन जब उनका ऊपर उड़ेगी तो वो सही दिशा में नहीं पहुंच पाएगा, उनको निकलना था सऊदी अरब, वो पहुंच जाएगा साउथ अफ्रीका। लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो इस बात से यह साबित किया जा सकता है कि जमीन स्टेशनरी है, द अर्थ इज स्टेशनरी एंड द सन इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ। ये
सूरज घूमता है लेकिन जमीन नहीं। और भी एक मिसाल से साबित कर सकते हैं, बंदूक लीजिए, बंदूक, गन, और दो एक ही हिसाब का बंदूक लीजिए, मानिए पिस्टल, पिस्टल के अंदर 9 गोली होते हैं, 9 पिस्टल लीजिए और आप दोनों को एक एवरेज का पिस्टल लीजिए, एक ही मॉडल का 2 पिस्टल लीजिए और गोली दोनों तरफ एक ही साथ बटन दबाइए, जो ट्रिगर है, जो घोड़ा है उसको दबाइए, एक ही साथ दो तरफ 2 गोली निकलती है और वो ट्रिक, मानिए उस गोली का जो है डिस्टेंस है वहां से वो तकरीबन 1 किलोमीटर तक जा सकती है, मानिए, और दोनों तरफ मार दीजिए, ये 1 किलोमीटर के एवरेज पे दोनों को गोली निकल जाती है। फिर क्या होता है कि अगर ये जमीन घूमे तो दोनों का बैलेंस गड़बड़ाएगा, मतलब आप जिस निशाने पे मारेंगे गोली वहां नहीं लगना चाहिए, क्योंकि गोली उस वक्त जमीन को छोड़ी हुई रहती है। जब बंदूक से निकलती है तो गोली बंदूक को छोड़ी हुई ऑलरेडी, तो जब वो आपके बंदूक से निकल जाती है तो जमीन को छोड़ी हुई है, हमने निशाना किया उनके सर पे मारूंगा लेकिन लगना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि जमीन अगर घूम रही है उनका सर वहां से हट जाना चाहिए, दूसरे को लग जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। हम जिनको गोली मारते उन्हीं को लगता है। ये भी एक सबूत है कि जमीन इस हिसाब से भी नहीं घूमती, इस हिसाब से भी नहीं। लेकिन एक साइंस ने माना कि प्लैनेट्स, ग्रह, प्लैनेट्स वो घूमते हैं, तो जमीन भी एक ग्रह है, जमीन भी एक ग्रह है, इस हिसाब से उन्होंने कहा कि जमीन घूमता है। और ये गैलीलियो ने साबित किया कि सूरज ग्रहण होता है ना, सूरज ग्रहण, तो सूरज ग्रहण को गैलीलियो ने साबित किया कि जब सूरज और चांद के बीच ये जमीन आ जाए, सॉरी चंद्र ग्रहण में ये बात साबित किया, तो जब सूरज और चांद के दरमियान